here discussing about what will happen if at t is equals to 0 I will have certain things like this. I will have a sine kx, and you know that at x equals to 0 I will have a sine wave starting like this. Fine. Now what will happen if I add a phase difference? If I add a phase difference, let's say some epsilon inside my kx. So instead of having psi x comma t, if I say I have it like a sine, I would request you to please keep your microphones muted. Then what will happen? So this additional component or this additional constant denotes what I call is as a phase constant. Phase constant. और ये फेज कांस्टेंट क्या स्पेसिफाई करता है या क्या बताने की कोशिश करता है, ये कि जरूरी नहीं है दैट योर वेव विल स्टार्ट लाइक अ साइन वेव ओनली. योर वेव कैन स्टार्ट लाइक दिस. Okay, where you see that at x equals to 0 it is not equals to 0, or your wave can also start like this. And this variation in the amplitude at x equals to 0 is coming because of this epsilon. This epsilon is called as the phase constant and it governs that मैं एक अगर फिक्स्ड लाइन ले लूं x equals to 0 की, तो उस पॉइंट पर what will be the amplitude of my wave is going to be. फाइन. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, of considering, let us say जो psi of x comma t है, it is equals to a sine of kx minus omega t plus epsilon. ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? Are you able to see this? Yes, sir. Great. For one case, let me consider that let's say epsilon is equals to pi. Epsilon is equals to pi. तो epsilon is equals to pi का मतलब हो गया, मैंने psi x to t को लिख लिया a sin kx minus omega t plus pi. I have taken it something like this. Fine. Now sin 180, pi is like 180 plus theta is equals to कोई याद है किसी को कोई चीज? So आपके पास ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपके पास 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 4 है और ये 2 पाई है. तो मुझे अब याद दिलाना होगा कि इस क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. इसमें साइन और साइन इनवर्स के जैसे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan और tan इनवर्स जैसे कॉस पॉजिटिव होते हैं, और ये cos और cos इनवर्स जैसे पॉजिटिव होते हैं. Here we have taken 180 plus theta. तो एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है कि sin 180 plus theta is equals to sine of minus theta or minus sin theta. That's how you can take it. Yes, definitely. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस पाई का केवल इतना रोल रहा होगा, I can say कि इस पाई का केवल इतना रोल रहा होगा. सचिन राठौर, yes, you have a question? Sir, this is 3 pi by 2. Yeah, this is 3 pi by 2. You are right. This is 3 pi by 2, not 3 pi by 4. Thank you so much. Thanks for suggesting the correction. This is very valid. So अब इस पाई का मीनिंग बस इतना रह गया कि I can have it just like this. A sin minus common ले लो kx minus omega t, because this was working as a theta plus pi for me. तो अब मेरे पास क्या बचा? A sin kx. This is like A sin omega t minus kx जैसा हो गया है. Correct? This is same as omega t minus kx. That's it. A sin omega t minus kx. I can take it like this. और एक और प्रॉपर्टी एक ऐसे भी लिख सकते हैं. Do you know that this is also one property? A cos theta minus 90 is equals to A cos 90 minus theta, theta minus 90 is equals to A sin theta. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको, इस चीज को इसके बराबर भी लिख सकता हूँ, that it can also be written as A cos
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू, तो कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा माइनस 90 कर लें, वो उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस माइनस थीटा होता है, उस प्रॉपर्टी से यू कैन रिलेट दैट if there is a phase difference of 90 then sine will change to cos. Okay, तो ये भी चीज देखने वाली है that this psi which was x comma t I was writing as a sine omega t minus kx. I can also write it as a cos omega t minus kx, but then there would be an induced phase difference. Okay, which is converting this from cos to sine. And both are same now. Okay, both are same actually, because यहाँ पे अगर मैंने एक फेज डिफरेंस लिया cos में तो it becomes sin. अगर आप इस फेज डिफरेंस की डेफिनेशन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो you take it like this. So you're asking me to repeat this last page? Priyanshu Yadav is expecting me to repeat this last page. यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा. There should not be any problem till this point. Yes, sir. Okay. अब क्या है मैंने ये कहा कि psi of x comma t which is equals to a sin omega t minus kx. Okay, a sin omega t minus kx, इसको cos के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो हमें पता है कि cos थीटा माइनस 90 कर दे तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है. तो ये आइडेंटिटी पढ़ी आपने? देखो, यस cos थीटा माइनस 90 किया, या फिर आप इसे ले सकते हैं cos ऑफ माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो ये थीटा माइनस 90 कर लिया या माइनस ऑफ, तो आप जानते हैं ये cos 90 माइनस थीटा के जैसे ही रहता है. यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. Okay, so I can use this concept and say just say that sin omega t minus theta को मैं, and this becomes equals to sin theta. याद है? Yes, sir. ओके, तो अब बस इसको cos में कन्वर्ट करने के लिए आई कैन सिंपली राइट कि जो साई ऑफ x कॉमा t है जो कि a sin ओमेगा t माइनस के एक्स के बराबर है, अगर मैं इसे cos के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मुझे ये बोलना पड़ेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स में एक 90 का फेज शिफ्ट और ले आओ. ठीक, ये बोलना पड़ेगा. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप एक cos का ग्राफ बनाएं तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? What is the value of cos 0? तो cos 1 के बाद फिर 0, फिर it goes like this and this. Okay, that's how the cos function goes. और फिर ये अपने आप को ऐसे दोबारा से रिपीट करेगा, फिर ये अपने आप को ऐसे दोबारा से रिपीट करेगा. Now instead of saying कि मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, what I'm saying is ये 90 डिग्री पीछे जाओ. ओके, और यहाँ से देखना शुरू करो तो it becomes a sine wave. अगर मैं इसे इस पॉइंट से देखना शुरू करता, जो रेड है, तो कॉस वेव दिख रही है, लेकिन मैंने कहा कि इसमें फेज शिफ्ट करो, इसको थोड़ा सा 90 डिग्री पीछे जाके दिखाओ, तो इट बिकम्स अ साइन वेव. देखो यहाँ से अब ये साइन वेव जैसी लगेगी अगर ब्लैक वाला भी कंसीडर कर लें. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस. तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि साइन और कॉस में कितने डिग्री वेव हैं, एक कॉस साइन ओमेगा टी, एक है कॉस ओमेगा टी, एक है साइन ओमेगा टी, दोनों में कितने का फेज डिफरेंस रहता है? पाई का पाई बाई 2 का पाई बाई 2, 90 डिग्रीज पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस रहता है. ठीक है, बिकॉज इफ आई वुड शो इट टू यू, मान लो साइन वेव है ये. ओके, दिस इज आवर साइन वेव, और कॉस वेव देखेंगे तो कॉस लुक समथिंग लाइक दिस. इट गोज लाइक दिस. तो यहाँ देखें, ऐसा लग रहा है कि, और ये पीछे से ऐसे इस तरीके से चली आती थी और इट वाज समथिंग लाइक दिस. तो हमें ऐसा लगता है कि जो कॉस वाली वेव है वो साइन को देखते हुए थोड़ी देरी से चल रही है, 90 डिग्री देरी से आ रही है या पाई बाई 2 देरी से आ रही है. एंड देयरफॉर वी से दैट अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में मैं ये निशान ना बनाऊं, आई डोंट मेक दिस सेग्रीगेशन, और केवल ये बना देता आपके लिए देयर इज अ वेव, और फिर मैं कहता देयर इज अ वेव.
तो इन दोनों में आप नहीं बोल पाते कि फेज डिफरेंस है। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से देख रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखने में इफ आई सी अ फेज डिफरेंस देन आई कैन से दैट आवर वेव्स आर हैविंग फेज डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, वो कुछ और एंगल का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी मेन साइन वेव हो गई और आपने क्या किया, थोड़ा सा फेज शिफ्ट किया, पूरा 90 डिग्री का नहीं किया आपने, थोड़ा सा फेज शिफ्ट किया और वो कितना था, वो बस इतना था, ये उल्टा हो गया। बताइए कितने का फेज शिफ्ट लग रहा है? सर ये 180 पाई तो आई 180 पाई। तो ऐसा लग रहा है कि इतनी पोर्शन है, जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, यू सी दिस मच, ये तो पूरी एक वेवलेंथ ही हो गई। वेवलेंथ का इतना भाग विच इज हाफ वेवलेंथ खिसका दिया गया है ऑन द राइट साइड। तो आप कह सकते हैं या तो ये धीरे आ रहा है या ये फास्ट आ रहा है, तो बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पाई इन बोथ। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर पाई का डिफरेंस आ जाए तो साइन माइनस हो जाता है। ये साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा जैसा है ना। इसका जस्ट ऐसा लग रहा है ना, माइनस टाइम्स ले लिया है, जहां ये पॉजिटिव है वहां ये नेगेटिव है, जहां ये नेगेटिव है वहां ये पॉजिटिव है। इट्स लाइक दिस, बट इट डिपेंड्स कि आपका फंक्शन जो है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, ये ऑड इवन फंक्शन भी आगे चल के मृत्युंजय बघेल, यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर। हाँ पूछिए। सर हम मतलब फेज डिफरेंस को सर हम मतलब ऐसे एक ग्राफ के फ्रेम से बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। इफ इट इज सेड दैट कि दोनों वेव्स जो है वो मोनोक्रोमैटिक है, यानी दोनों वेव एक ही वेलोसिटी, एक ही वेवलेंथ और एक ही फ्रीक्वेंसी से चलती हैं, फिर उन दोनों में फर्क क्या है? देखो, इसकी मैं बोल रहा हूँ, इस वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है या एफ कह लो, वेवलेंथ लैम्डा है, टाइम पीरियड टाउ है। सेम इसके लिए भी ये ट्रू है, ओमेगा एफ लैम्डा टाउ, और वेलोसिटी वी भी बोल देता हूँ लो। फिर इन दोनों वेव में अंतर क्या है? देयर इज स्टिल अ फिजिकल डिफरेंस कि अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पे देख रहा हूं तो भले ही ये 0 है, लेकिन आगे चलने पे इनका नेचर बदल जा रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ फेज। फेज डिफरेंस। ओके, तो इसीलिए केवल ग्राफ से देखकर आप बता सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली टेल जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ कि फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स। इक्वेशन को देख के तो पता कर ही सकते हैं, इक्वेशन तो वो एक कांस्टेंट एप्सिलॉन मिल ही जाएगा, बट डेफिनेटली आप ग्राफ को देखकर भी ये पता कर सकते हैं कि वेदर देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स और नॉट। ओके, तो अब से हम एक छोटा सा जनरलाइज नोटेशन यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग माय वेव इज इक्वल्स टू साई एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, अब मैं कहूंगा ये नोटेशन ना यूज करके एक मोर जनरल नोटेशन यूज करो which also incorporates the phase constant। तो kx माइनस ओमेगा टी और प्लस एप्सिलॉन। ठीक, और इस चीज को, ये जो साइन का फंक्शन का जो इनपुट हुआ, इसको फेज बोल रहा। ओके, और डिनोट करूंगा मैं फाई से, एंड फाई यू सी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो फेज इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पर वेव को देख रहे हैं और किस समय उस वेव को देख रहे हैं। ठीक, अगर आप अलग अलग वेव को अलग अलग समय पर देखेंगे तो हो सकता है आपको फेज डिफरेंस ना दिखाई दे। जैसे आप इस कंडीशन में देखें, इस वेव को आप इस पोजीशन से देखें, जज करें, और इस वेव को आप इस पोजीशन से जज करें, तो फेज डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो फेज डिफरेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन at what time you are looking at it and at what position you are looking at it. This is the reason I'm saying that phase is a function of both position and time. Okay, ये बात समझ आई? तो फेज का मतलब है दो वेव्स हैं, उनके बीच में समानता है या नहीं है, वो एक जैसी बिल्कुल रेप्लिका है एक दूसरे की या नहीं है। आपने देखा कि जब मैंने पाई का फेज शिफ्ट कर दिया था, देयर वाज नो रेप्लिका, एक दूसरे की रेप्लिका नहीं थी वो। ऐसे ही आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, हैव यू सीन सोल्जर्स मार्चिंग, जो मार्च पास करते हैं परेड में, हैव यू सीन सोल्जर्स मार्चिंग? यस सर। अब उनके हाथ का मूवमेंट देखिए, पैर का मूवमेंट देखिए, कितना कोऑर्डिनेटेड होता है ना। नाउ अज्यूम उसमें से कोई एक बीच में सोल्जर है एंड
ही समहाउ मिस द स्टेप, और उनका हाथ जो है वो गलत तरीके से हिल गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट की जगह राइट राइट लेफ्ट हो गया, तो आप देखें उनके पीछे जितने भी लोग होंगे उन सबका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा। सही बात? क्योंकि ये Yes, कहा sir. जाता है अपने आगे वाले से आप कोऑर्डिनेट करके रहिए। तो एट दैट मोमेंट वो जो पोजीशन थी और जिस समय ऐसा गड़बड़ आई उनके दिमाग में, उसकी वजह से पूरी की पूरी वेव जैसी जो फिनोमेना लग रही थी, कंटिन्यूअसली रिपीट करते धम 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 करके आगे बढ़ रही थी, अजीब सा केओस हो जाएगा वहां पे। एंड दैट इज यू कैन से अ क्रूड एग्जांपल, एक्चुअल एग्जांपल नहीं है, कोट मत करना कहीं, बट आप वहां से समझ सकते हैं कि ये फेज गड़बड़ आ गया, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड हो रही थी, कहीं कुछ गड़बड़ी आ गई तो फेज चेंज हो गया। यू कैन से कि यहाँ फेज शिफ्ट हुआ है, तो उसे फेज शिफ्ट बोलते हैं। गॉट इट? हालांकि मोर फिजिकल वे में जाए तो उसे डीकोहेरेंस बोलते हैं, यानी अच्छी खासी वेव थी, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और पता नहीं क्या हुआ, राइट 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 राइट, और फिर ये लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आई, उसकी वजह से आगे का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बिगड़ गया या पीछे वालों का बिगड़ गया। दैट इज फेज डिफरेंस। एक और एग्जांपल फेज डिफरेंस का समझ सकते हैं कैसे। मान लो मैंने क्लास 10:05 पे शुरू की, आप में से कुछ लोग 10:05 पर ही आ गए और कुछ लोग 10:25 पे आए, तो डिस्टर्ब कौन से लोग रहेंगे ज्यादा, जो 10:05 पे आए वो, या दो 10:25 पे आए? जो 10:25 पे, उनको ये परेशानी रहेगी कि यार हम लेट हो गए थे, पता नहीं आगे पीछे वाले में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया था, कहीं सीटी सीए डीएचए में ना पूछ लिया। तो जब सब कुछ एक साथ एक समय पर हो रहा है वो फेज में मैच है, तो इसीलिए आपको एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया जाता है टू मैच द फेज, टू मैच द टाइम, कि इस समय हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है? और प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लेट हो जाएं, या मेरा जैसे अभी सिस्टम क्रैश हो गया था, तो यू आर डूइंग डिस्कशन अबाउट केमिस्ट्री, राइट? देयर वाज अ फेज मिसमैच इन दिस होल पूरा एक पीरियड में। वी आर सपोज टू लर्न फिजिक्स बट यू वर डूइंग केमिस्ट्री। ओके, ऑल जोक्स अपार्ट, ऑल ये जो वेग एक्सप्लेनेशंस हैं, इसे आपको केवल समझाने के लिए, आई डोंट कोट इट एनीवेयर। बट नाउ वी हैव अ फंक्शन phi of x comma t, phi of x comma t, which is kx minus omega t plus epsilon. Okay, where epsilon is a constant, where epsilon is a constant. अब इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, फेज डिफरेंस को। फॉर एग्जांपल ये रही एक दीवार, इस दीवार से हमने बांधी है एक रस्सी। अब ये है पर्सन ए, इन्होंने इस रस्सी को जो झटका दिया है उसकी वजह से एक ऐसी तरंग उत्पन्न हुई है जो फिर आगे ट्रेवल करेगी विद वेलोसिटी v। और एक इनके मित्र हैं, इनके पास भी एक रस्सी है, इन्होंने इस रस्सी को जो झटका दिया है उस पर एक ऐसी तरंग उत्पन्न हुई है जो कि फिर वेलोसिटी v से आगे बढ़ेगी। तो क्या इन दोनों में अंतर नहीं है? डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन द टू? Yes, sir. एम्पलीट्यूड सेम है, प्रोफाइल सेम लग रही है, बट स्टिल देयर इज अ फेज डिफरेंस। ओके, so you should remember that। एक और प्रॉपर्टी होती है वेव की ही जो फेज डिसाइड करती है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप बताएं, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या क्या है, इसमें वेरिएबल कौन कौन सी चीजें हैं इस पूरे में? x and t आर टू वेरिएबल्स। तो मैं बोल रहा हूं इस फाई का आप पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज with respect to position निकालिए। So what I am asking is this, I am expecting you to find out what is rate of change of phi, which is phase, with respect to x। अब पार्शियल डेरिवेटिव है तो दूसरा वाला जो वेरिएबल है उसे क्या मानेंगे? Constant. At constant time। तो ऐसा करने का मतलब हुआ, what I am asking is this, del phi by del x निकालिए कीपिंग टाइम कांस्टेंट। तो आप जानते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी ये इसमें, अगर ये kx minus omega t plus phi है, इसका del phi by del x करना है तो what it will be equals to k। और अगर इसका मॉड्यूलस लूं, केवल मुझे तो रेट चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, आई जस्ट वांट द रेट, तो मॉड्यूलस तो k ही रहने वाला है एट कांस्टेंट t। डू यू एग्री? मानो ना? यस, Yes, sir. फाइन। अगर मॉड्यूलस नहीं लेंगे तो बात अलग थी। नाउ take another quantity which is rate of
change of phase with respect to time at constant x. So what I am asking that you tell me what is del phi by del t at a constant position, और ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ओमेगा. तो नाउ इट डिपेंड्स कि यहाँ माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा. तो आई कैन राइट दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा. और अगर मैं कहूँ इसका मॉड्यूलस ले लो, केवल हमें मॉड्यूलस से मतलब है, तो किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा. तो ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा. ठीक. तो वैसे अगर स्पीड पता करनी है आपको तो ओमेगा बाई के, लेकिन वेलोसिटी पता करनी है तो वी नीड साइन ऑल्सो. अब एक काम कीजिए, आपने ये कैलकुलस में बहुत पढ़ा होगा. इफ आई टेक लेट्स से दिस डेल फाई बाई डेल टी, ठीक, और इसको डिवाइड दे देता हूं मैं डेल फाई बाई डेल एक्स से, तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल टी के? ये बहुत पढ़ाया जाता है. ओके, सो इफ आई डू दैट, तो ये अगर डेल एक्स बाई डेल टी है तो इसकी यूनिट्स क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में देखें तो पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, और यही कहलाती है, एक स्पेशल नाम है इसका, फेज वेलोसिटी. ठीक. अगर हमारा फेज बदलता नहीं है, फेज इज कांस्टेंट, यानी मैं बार बार उस एप्सिलॉन को चेंज नहीं कर रहा हूं, आई एम कीपिंग दैट एप्सिलॉन फिक्स, तब वेव किस तरीके से टाइम में प्रोग्रेस करेगी, किसे पोजीशन के साथ उस फेज का बदलाव मुझे देखने को मिल सकता है, इज कॉल्ड एज फेज वेलोसिटी. और अगर आप इन क्वांटिटीज को रख दें, व्हाट वाज डेल एक्स डेल फाई बाय डेल टी इक्वल्स टू, न्यूमरेटर किसके बराबर था? ओमेगा. सो इट डिपेंड कि माइनस ओमेगा था या प्लस ओमेगा था. तो अगर मॉड्यूलस लूंगा तो ओमेगा के बराबर होगा, और मॉड्यूलस नहीं लूंगा तो माइनस ओमेगा के बराबर होगा. और डेल साई बाय डेल एक्स किसके बराबर था? व्हाट वाज दिस इक्वल्स टू? सो इट वाज इक्वल्स टू के. तो अब आ गया हमारे पास डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के. तो मेरे पास आया डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के व्हेन फेज वाज ऑफ दिस फॉर्म, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन. ठीक. और अगर फेज इस फॉर्म का होता, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, तब क्या होता बताएं? अगर ओमेगा अपॉन एक्स, तो ये हो जाता डेल एक्स अपॉन डेल टी वुड हैव बीन इक्वल्स टू ओमेगा बाई, बताएं, ओमेगा बाई के की इक्वल, दैट्स इट. ओके, बट आपने तो एक चीज पढ़ी है, व्हाट दैट इज, कि ये जो ओमेगा बाई के होता है वो तो इसके बराबर होता है वी के. यू हैव लर्न दैट, यू नो दैट राइट? ओमेगा बाई के इज इक्वल्स टू वी के इक्वल होता है. अब यहां से हमें एक चीज पता चली दैट इफ आई कंसीडर ये वाला साइन जो था ना यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल टी, अगर मैं इसमें यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर देता तो ये अपने आप प्लस हो जाता. फाइन. अगर मैं इसे यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर देता तो ये अपने आप प्लस हो जाता. तो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, आप उसे लिख लीजिए. इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट rate of change of phase with respect to time at constant position divided by rate of change of phase with respect to position at constant time with a negative sign is equals to either plus v or minus v. It can be equals to minus v also. Okay, it depends. अब यहाँ पे जो प्लस या माइनस साइन बचेगा, it will tell you whether the velocity or the direction of wave it's towards positive x-axis or towards negative x-axis. Okay, और ये याद रखिएगा आप, when the sign here remains as positive, अगर यहाँ साइन पॉजिटिव बचे इस जगह नेगेटिव लेने के बाद, we are taking a negative here, तब साइन पॉजिटिव बचे, then our wave is moving in positive x direction. और अगर यहाँ नेगेटिव लेने के बाद भी यहाँ नेगेटिव बच रहा है, then our wave is moving in negative x direction. फाइन. या फिर आप उल्टा ले सकते हैं, इस जगह मैं माइनस साइन नहीं लेता
और यहाँ पे माइनस प्लस आ जाता तो अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर लेते। ठीक है, सो इस v के पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाएगा whether the direction of motion is in positive x direction or it is towards negative x direction. फाइन, बात समझ आई? ये नेगेटिव साइन इसीलिए ले लिया ताकि v के प्लस माइनस से ही पता चल जाए कि प्लस x में है या माइनस x में। दैट्स इट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ? यस सर। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए, if my phase was this kx minus omega t plus epsilon, तो बताइए whether the wave was moving towards positive x or negative x। तो पहले लेंगे आप del phi by हाँ बिल्कुल, तो जब मैंने लिया del phi by del t तो वैल्यू आई माइनस ऑफ del t है ना, तो माइनस ऑफ ओमेगा, फिर डिवाइड किया, फिर वैल्यू आई मेरी माइनस ऑफ प्लस ऑफ के विद अ नेगेटिव साइन, तो ये प्लस हो गया। ओमेगा बाई के इज v, तो v का साइन पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई आई वुड से दैट माय वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर phi is equals to kx plus omega t, kx plus omega t plus epsilon, तो आप जानते हैं I would be left with a minus v like this, so that then I would say कि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव करेगी। फाइन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिकॉज आई एम सेइंग माय फेज इज कांस्टेंट व्हेन आई एम सेइंग दिस ना, del x by del t at phi, आई एम सेइंग दैट फेज इज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट का मतलब है कि प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल सेम है, वहां पे किसी की हाथ के मोशन से या लेट आने की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई है। व्हेन आई से फेज इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये kx minus omega t plus epsilon is constant, तभी वेलोसिटी निकल रही है ना। अब एक बात बताइए, इस कांस्टेंट में दिस वाज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट था। अब आप ये बताएं, ये तो कांस्टेंट ही था, परफेक्ट। तो अगर t बढ़ेगा तो आप जानते हैं ओमेगा और k तो कांस्टेंट है, t बढ़ेगा तो इस क्वांटिटी को कांस्टेंट रखने के लिए x को क्या करना होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। x को भी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसे माइनस वही वाली क्वांटिटी रखनी है। सो as t increases in this phase we say that kx also increases। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इस क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है, अगर t बढ़ाया तो x को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। फाइन, तो आप इस एप्सिलॉन को अभी जीरो मान लो, अब kx माइनस ओमेगा t लेके देखते हैं। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ ये मुझे कांस्टेंट रखना है, और मैं बोल रहा हूँ t जीरो, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो अब 2 ओमेगा और ये कांस्टेंट रखना है तो ये वैल्यू भी बड़ी ही होनी चाहिए ना, तो x क्या करेगा, बढ़ेगा ही। वहीं अगर आपके पास इस तरीके का डिफरेंस होता, फेज डिफरेंस होता kx प्लस ओमेगा t, उसमें अब t बढ़ रहा है, t इज इंक्रीजिंग, तो इस पूरे नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए x को क्या करते हैं आप, घटना पड़ेगा। घटना पड़ता है। हाँ, तो अगर t would have increased on the positive side तो आप x को नेगेटिव साइड पे इंक्रीज कराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव साइड पे इंक्रीज कराने का मतलब है घटना। That's how we keep that phase constant, and this is the concept of phase and phase velocity and its implications on how it will govern the nature of wave। क्या ये चीज जो आपको समझाने की कोशिश की समझ आई आज की क्लास में? Yes, sir. Okay, so that's Yes, it. sir. That's it for today's class. I have a duty and I'm getting calls to attend the duty for scanning, and that's it for today's class. There is no DHA for the class today. I will give you a DHA tomorrow, which will be taking some portion of today's class as well. So tomorrow's class will be focused on superposition principle. Please complete. Let me complete first. Don't stop me in between. Be professional. इतना तो अब आ जाना चाहिए ना आपने। If I am speaking something, don't say sir. You can raise your hand. I will start. I will give you your chance to speak. So tomorrow we will learn about superposition principle. We will see कि अगर दो अलग-अलग waves हैं, तो क्या वो दो अलग-अलग waves solution हो सकती हैं wave equations का या नहीं? Okay, and that we have to do in our next class. That we'll do in our next class. Okay, that's it.